کوئی کئی گھنٹے بیٹھنا پڑا. آج چیف جسٹس نے ڈیٹ دی تھی. پچھلی دفعہ تو پتہ چلا کہ پروسیکیوشن کا لائر نہیں آیا. اس بار پتہ چلا 1 جون کے ساتھ جج بیٹھتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ, وہی چھٹی پہ چلا گیا. اور یہ بھی انفارمیشن ہمیں صبح کو ملی ہے. اصل میں ساری یہ چیزوں کو چھوڑ کے اس کے اوپر میں سیدھی بات آپ کو اپنے لائر کی بتاتی ہوں, سلمان صفدر صاحب کی, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس جب ججز کے سامنے جائے گا اس کا کل ٹائم اس عمران خان کی کنوکشن کو ختم ہو جانی چاہیے. بیل تو چھوڑیں, کنوکشن بھی ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ 3 منٹ میں یہ اتنی احمقانہ کنوکشن ہے. جو ناصر جاوید جو جج تھا, جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ یہ شیطانی فیصلے دیتا ہے, اس ناصر جاوید کے اوپر مشکوک جج کے اوپر اسے ایسے فیصلے دیے ہوئے ہیں کہ اس کی اگلی 10 پشتیں یاد رکھیں گی, اور دنیا کو, پاکستان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا تھا. اب یہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ کیس سن لیتے ہیں عمران خان کو اسی وقت رہا ہو جانا چاہیے. کوئی بھی جج شرمندگی میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا کیونکہ ان کو رہا کرنا پڑے گا. اس لیے ہر دفعہ جب ڈیٹ لگتی ہے ان لوگوں کو کہیں سے آرڈر آتا ہے, کبھی لائر بھگا دو, کبھی جج ہی بھگا دو. اب ہمیں 3 گھنٹے وہاں بیٹھے ہیں, پھر جا کر مشکل سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم ڈیٹ نہیں دیں گے, ہم بہت مصروف ہیں. انہوں نے کہا, ججز نے کہا ہم بہت مصروف ہیں, ہم اگلے ہفتے شاید آپ کو ڈیٹ پھر بتائیں گے. ہمارے اصرار کرنے پہ اب انہوں نے 26 تاریخ کی تاریخ ڈال دی ہے, جو جمعرات بنتا ہے, اور آج سے 15 دن کے بعد. آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان کو یہ رہا نہیں کرنا چاہتے. کوئی بھی آپ کو آ کے آئندہ کہے کہ عمران خان رہا ہونے لگیں, میں ٹی وی پہ کہنا چاہتی ہوں وہ عمران خان کے دشمن ہیں. وہ عمران خان کے دشمن ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے. وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان جو تحریکی کال دیتے ہیں وہ چلے. وہ جان کے آ کے ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ جی عمران خان کی بس خوشخبری آنے والی ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ شیطانی کر رہے ہیں. عمران خان کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کیس سننے کا, اور نہ ان کا ارادہ عمران خان کو رہا کرنے کا. آج آپ کے سامنے سارے ایم این ایز آئے ہیں, سارے ایم پی ایز آئے ہیں, علی امین گنڈا پور پشاور سے آئے ہیں, سارے یہاں موجود ہیں. آپ پیچھے دیکھ لیں, بچر صاحب آئے ہیں, وہ پنجاب اسمبلی کے ممبرز آئے ہوئے ہیں, سارے قانون ساز لوگ باہر کھڑے ہیں. اور چیف جسٹس تاریخ سے مکر کے ہر دفعہ ڈیٹ دینے کو, تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کی رہائی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. عمران خان کی رہائی ہم پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا یہی اسی طرح ہی تاریخیں بھگتتے رہیں گے, اور یہ اپنے ساتھ مذاق اور عمران خان کے ساتھ مذاق ہوتا دیکھتے رہیں گے. 26ویں ترمیم کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں کہ ججز کا بالکل اس وقت ان کا جو رول آف لا جو کہتے ہیں نا عمران خان ختم ہو چکا ہے, وہ آج آپ کے سامنے ہے. اب آئندہ کے لیے عمران خان نے, میں پھر سے بتاتی ہوں کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میں تحریک شروع کر رہا ہوں, اور عمران خان اس کا لائے عمل دیں گے. کل سے ہم نے جب یہ بات آپ تک پہنچائی ہے, اس کے بعد اس کا نتائج بتا دیتی ہوں کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ عمران خان کا آج توشہ خانہ کا کیس اڈیالہ میں تھا, وہ کینسل ہو گیا, اور آج اس کی تاریخ پڑ گئی ہے 1 جولائی کی. وہ ٹرائل آگے چلا گیا ہے. جو 9 مئی کا کیس ہوتے ہیں عمران خان کے جیل کے اندر, وہ 21 تاریخ کو چلے گئے, اور وہ بھی شاید آگے چلے جائیں. عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اسی ڈر میں کہ ان کی تحریک کہیں پیچھے سے شروع نہ ہو جائے, عمران خان اس کی کال نہ دے دیں. عمران خان بڑے مطمئن ہیں اس چیز پہ کہ انہوں نے اپنی تیاریاں سب کو کہہ دیا کہ مکمل کریں, اور عمران خان اس کی جو ہے اس کی بات جلد آپ تک پہنچا دیں گے. میرے خیال میں جب انہوں نے جتنی بھی ملاقاتیں بند کر دیں, ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہوا ہے, اور یہاں ان کے پارٹی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کیا کہا ہوا ہے, اور یہ تحریک اب روک نہیں سکتے کیونکہ ہمارے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. آپ کے سامنے ہیں, جج ڈیٹ دیتے ہیں اور عمران خان کو رہا کرنے کو تیار نہیں ہے.
जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं, उनको हमारी यकजहती भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं पड़ रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखना है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे। अब ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें, और अब हम सिर्फ पीटीआई की लीडरशिप को ही देखेंगे कि वो अब हमें बताए कि अब हमारे भाई को किस तरह जेल से रिहा करवाया जाएगा। अब मैं जी अली अमीन गंडापुर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि 26वीं तरमीम जो हुई है ये बेसिकली अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है उससे, और ये एक मार्शल लॉ लग गया है अदलिया के ऊपर। इस मुल्क में तो मार्शल लॉ लगा ही हुआ है, अदलिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है, और जिन लोगों ने इसको पास किया और वोट दिया है तो पूरी कौम जान ले कि वो इस कौम की और अदलिया की आज़ादी के गद्दार हैं सारे के सारे जो भी हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो ड्रामा शुरू है यहाँ पर कि पहले वो वकील साहब आए, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब की पेशी लगी हुई है। वकील साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, प्रोसिक्यूशन वाला कह रहा है वकील उनका कि मुझे पता ही नहीं है। अब ये वकील साहब को अब इसका क्या जवाब मैं दूँ? मेरे ख्याल में वकील साहब कोई सत्तू तो मेरे ख्याल में पी के थोड़ी सी नींद आती है, कोई और सत्तू को पिया हुआ था कि उसको पता ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता है उसको पता नहीं है। आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, पता भी सुबह चला, तो ये भी फिर पेशी दी है इन्होंने 26 तारीख को। तो मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि अब इसके ऊपर फिर कोई छुट्टी पे होगा या कोई बीमार होगा या कोई शायद ये वाला वकील जो है प्रोसिक्यूटर जो है वो कोई एजी लग जाए, इस तरह पहले वाले को लगा दिया, क्योंकि इस केस में है ही कुछ नहीं। इस केस की जब हेयरिंग होनी है तो हमारी लीगल टीम के मुताबिक ये 3 मिनट भी ये केस सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं, झूठा केस है। और आज तक जितने भी केस इमरान खान साहब के लगे हैं जिसमें भी ये डिले कर करके इन्होंने ट्रायल हुआ है, सब में जमानत हुई है, था ही कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब समझ आ गई है, और उम्मीद जो थी एक अदलिया से जिन्होंने हमें इंसाफ देना था, तो हमें समझ आ चुकी है कि ये तो इनके बस में तो कुछ नहीं है। इनके बस में जब कुछ नहीं है तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही है अपना आईनी हक कि हम सड़कों के ऊपर अपना इंसाफ लें, सड़कों के ऊपर हम आकर अपनी तहरीक चलाएं। और तहरीक में लास्ट में उन्होंने गोलियां चलाई। मैं बार बार कहता हूँ फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट देते हो आप लोग, कोई चला दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर, ठीक है। ये मजाक नहीं चलेगा। ये मुल्क हमारा है, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बाज़ार ने कुर्बानियां दी हैं। ये कोई इसी हवाले हम नहीं कर सकते कि वो जो करे इस मुल्क पे करता फिरे और हमें मारता फिरे और हम गोलियां खाते रहें और सीधे पेश करते रहें। दूसरी एक 2 क्वेश्चन आपके मैं पहले से आंसर कर देता हूँ। एक तो अपनी तहरीक हम शुरू करके दोबारा सड़कों पर आकर आईनी तौर पर अपना हक लेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है, कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ जो आप करेंगे। ओवरसीज जो है वो इमरान खान के साथ क्यों है? उसकी वजह ये है कि ओवरसीज पाकिस्तान की इज्जत को देखते हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर उनकी वहाँ पे वैल्यू नजर आती है कि वो किस मुल्क से है। हर मुल्क का ऐसा ही होता है। किसी मुल्क का कोई बंदा भी किसी और मुल्क में जब होता है तो उस मुल्क का जो एक इज्जत है, वकार है, वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर कि कितनी इज्जत दी जाती है उसको वहाँ पर। इमरान खान ने जो कि पाकिस्तान की खुददारी की, खुद मुख्तारी की और पाकिस्तान के वकार की बात की है हमेशा, इसलिए ओवरसीज फॉलो करते हैं इमरान खान को। अब ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। हम पहुंचाना चाहते हैं तकलीफ, इनको पहुंचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं यहाँ से, हम आपके साथ हैं। आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। आपको तो एक गोलियां भी नहीं मार सकते क्योंकि ये गुलाम है उन मुल्कों के, वहां से पाँव पकड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो आपको तो लिवरेज है इस चीज से, गोलियां भी आपको नहीं मार सकते। तो आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना है। वो जो कुर्बानी दे रहा है अपने लिए नहीं दे रहा, वो हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। तो क्लैरिटी हो जाए सबको कि तैयारी करो। इंशाल्लाह ये जितना भी जोर लगा लें, इमरान खान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न कोई डील करने वाला है। ये इनको पता चल गया है। इनके बयान सुने होंगे आपने कि हफ्ता नहीं टिकेगा, वो शुक्र है जो लोग उसको मिलते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान को मिलता हूँ। अगर मुझे ये सोच पे निकाल दूं अपने जहन से
इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें और उसका जज्बा, मुझे लगता है कि शायद बनीगाला में मीटिंग कर रहा हूँ उनसे, वो डटा हुआ है क्योंकि उसका जाती इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कौम की जंग लड़ रहा है, उसके अंदर एक जज्बा जो है वो ये है कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, तो वो डटा हुआ है। हम तो बाहर घूम रहे हैं, हम भी डटे हुए हैं। अब ये तहरीक जो दोबारा शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग रहे हैं उससे अपने आइन के मुताबिक, उनका हाल भी हमने देख लिया है। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही हैं, तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, किस एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो, तहरीक इंसाफ को खत्म करो। नहीं वो तो खत्म कर सके इंशाल्लाह, न तहरीक इंसाफ खत्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। इनकी ये फिरौनियत खत्म होगी, इनके जो माफिया बना हुआ है पाकिस्तान पे काबिज है पिछले 77 ईयर से, ये माफिया खत्म होगा। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी होगी, पाकिस्तान में अदलिया भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की जमहूरियत भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की पार्लियामान भी आज़ाद होगी और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ भी आज़ाद होगी इंशाल्लाह। और कुछ बंद होगा, सब कुछ इनका बंद होगा इंशाल्लाह। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। इस तहरीक के बारे में शर्म करो, हया करो। तहरीक के बारे में मैं यही कहूँगा कि तहरीक के लिए लाएमल बन रहा है, वो लाएमल बनेगा, उस लाएमल के मुताबिक हमने इंशाल्लाह काम करना है और उसके ऊपर जैसे जैसे वो चीज़ आगे आएगी आपके सामने आती रहेगी। कुछ कहना उसके पहले की बड़ा वक्त भी है और इस दफा प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है। प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6 जगहों पे खड्डे मार देते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ये मैं बताऊंगा नहीं ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने मुझे कहा है, मेरे मजहब ने इजाजत दी है कि मैं अपने डिफेंस करूंगा, मेरे आइन ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सब की कमरों में होगी, कमरों में। कमर फेरनी है, कमरों में लगनी है। इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद, एक सेकंड, इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में नहीं आना, ये उनका जो प्लान है उसमें इस्लामाबाद शामिल नहीं है। ठीक है जी, शहरों को बंद, यहाँ गोलियां शहरों को बंद। थैंक यू जी। 9 मई के जो केस लगे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, क्या वो जजेस की छुट्टी पे चले जाएंगे? 16 को 9 मई की जो केस है, आपने बता दिया कि अमेरिका नहीं, दुनिया के किसी कोने में कोई भी इमरान खान के एहतजाज कर रहा है, हम उसके साथ हैं, भरपूर तरीके से साथ हैं। ओके, थैंक यू।